لاہور میں پولیس پر دہشت گرد حملے کی کڑیاں بہاولپور مقابلے سے جا ملی۔ پولیس نے حملوں میں ملوث 2 دہشت گرد بھائیوں اور ان کے والد کو لاہور سے گرفتار کر لیا۔ دوران تحقیقات اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پولیس پر دہشت گردوں کا حملہ، تانے بانے چند روز پہلے بہاولپور میں ہوئے پولیس مقابلے سے جا ملے۔ پولیس نے لاہور سے ملزمان 2 بھائیوں فیضان، عثمان اور ان کے والد سلیم کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کا ایک اور افسر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ تحقیقات کے دوران اہم انکشافات سامنے آئے۔ ملزم فیضان خراسانی کے مطابق انہیں ٹارگٹ کلنگ کا ٹاسک کالعدم تنظیم نے دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملزمان کو کالعدم تنظیم کی طرف سے افغانستان بلایا گیا تھا۔ پولیس نے ملزمان سے رابطے میں رہنے والے 14 افراد کی نشاندہی کر لی۔ پنجاب پولیس پر گزشتہ 30 روز بھاری ثابت ہوئے۔ صوبہ بھر میں پولیس پر دہشت گردوں نے کئی حملے کیے، جن کا پولیس نے بھرپور جواب دیا اور دہشت گردوں کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دہشت گرد حملوں میں 15 افسران اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ جہانگیر چیک پوسٹ پر حملے میں زخمی جو ہونے والے 4 پولیس اہلکاروں کو تونسا ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، جبکہ 3 زخمی پولیس اہلکار نشتر ہسپتال ملتان میں تاحال زیر علاج ہیں۔ مہنگائی میں کمی صرف اعداد و شمار تک محدود، جنوبی پنجاب کے شہریوں کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملا۔ بہاولپور میں اشیاء خورنوش شہریوں کی پہنچ سے باہر، صارفین کے مطابق ایک بار ریٹ بڑھ جائے تو کم نہیں ہوتا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مہنگائی میں کمی صرف اعداد و شمار تک محدود، جنوبی پنجاب کے شہریوں کو کسی قسم کا ریلیف نہ ملا۔ بہاولپور میں اشیاء خورنوش شہریوں کی پہنچ سے باہر، صارفین کے مطابق ایک بار ریٹ بڑھ جائے تو کم نہیں ہوتا۔ ملتان انتظامیہ گراں فروشوں کو لگام ڈالنے میں ناکام، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ ادرک 540 کی بجائے 600 اور دیسی لہسن 268 کی بجائے 400 روپے فی کلو فروخت کیا جانے لگا۔ ملتان میں اشیاء خورنوش کی مارکیٹس میں مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری اور مارکیٹ قیمتوں میں فرق بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ تھائی لینڈ ادرک 540 کی بجائے 600 اور دیسی لہسن 268 کی بجائے 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 40 اور مارکیٹ میں 60 روپے فی کلو، جبکہ اروی 400، بھنڈی 240، پھول گوبھی 160 اور کھیرے 60 روپے فی کلو ہیں۔ مارکیٹ میں ہری مرچ 120، پیاز 160 اور آلو 80 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 76، پیاز 130 اور آلو 70 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مختلف کوالٹی اور اقسام کے سیب 240 سے 400 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ موسمی پھل تربوز 100، خربوزہ 160 اور آڑو 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ کیلے 160 روپے فی درجن، لوکاٹ اور پپیتا 250 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پرچون میں چکن 12 روپے مہنگا ہو کر 542 روپے فی کلو ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں فارمی انڈے 4 روپے مہنگے ہو کر 246 روپے فی درجن ہو گئے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے کھانے پینے کی اشیاء کو فوری سستا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد طاہر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ میاں والی کے شہریوں نے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کو مسترد کر دیا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مارچ 2024 کے نسبت اپریل کے دوران مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ میاں والی کے شہریوں نے مہنگائی بارے ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ زمینی حقائق کچھ اور ہیں، مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں کمی نام کی کوئی شے سامنے نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے بقول اپریل میں مہنگائی کم ہوئی ہے، حالانکہ جو اوورال دیکھا جائے پبلک میں تو مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ مہنگائی اگر پچھلے پیٹرول سستا ہوا تب بھی مہنگائی وہی رہی، اگر مہنگا ہوا تب بھی مہنگائی وہی رہی، یعنی کوئی ڈفرنس نظر نہیں آیا مہنگائی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے مہنگا ہونے پر کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا، مگر اب پیٹرول ڈیزل سستا ہوا ہے تو کرایوں میں کمی نہیں کی گئی۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اپنے بنائے ہوئے فگر ہیں، اس میں کمی بیشی کوئی نہیں ہے، اس میں مہنگائی تو اسی طرح ہے۔ اس میں پیٹرول کی جو قیمت یہ بڑھاتے ہیں تو 10% تو زیادہ اس میں بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں، بالکل یہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، تو ہماری گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور شماریات کا جو اس میں ہے تو ان کے اپنے فگر بنائے ہوئے ہیں، مہنگائی تو اسی طرح ہے اور جو غریب جو طبقہ ہے وہ تو پس کے رہ گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جہاں عام عوام پریشان ہے، وہیں صنعتی طبقہ بھی مشکلات کا شکار ہے، جبکہ ملتان ضلع انتظامیہ شہر میں خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف متحرک ہیں۔
समेत मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से आम आवाम परेशान। जिला इंतजामिया भी शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर रिजवान करीर का रोहित से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि शहर में 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खुद साख्ता महंगाई रोकने का टास्क दे रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम होना चाहिए। हर चीज़ का जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। तो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को जो नोटिफाई, हमारे अभी 40 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि फील्ड में डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, और जो भी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते तो उनको हम प्रॉपर शो कॉज भी करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो पर्पज़ यही है कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह निभाएं। महंगाई में इजाफे की वजह से सनती तबका भी मुश्किलात का शिकार है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल का रूही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। जब तक हम IMF के पाबंद रहेंगे इस सेक्टर में कीमतें कम नहीं होंगी। सप्लाई भी कम है और अफराते ज़र भी बहुत ज़्यादा है। उन दोनों वजूहात की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, और ये महंगाई मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इसमें कोई वाज़ेह कमी आएगी। जितनी देर हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे उतनी देर तक कम से कम एनर्जी सेक्टर में तो कीमतें कम नहीं होंगी। बढ़ती महंगाई का रगड़ा खाते अवाम हुकूमत से बराह रास्त रिलीफ के मुंतजिर नजर आते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक न पहुंच सके। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के ऐलान पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। शहरी कहते हैं कि 2 दिन बाद भी पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ की आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने ताहाल किराए कम नहीं किए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने मुल्तान का किराया 110 और खानगढ़ का 80 रुपए मुकर्रर किया था, मगर अब भी खानगढ़ का किराया 100 और मुल्तान का 120 रुपए वसूल किया जा रहा है। डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों का किराया भी कम नहीं हुआ। ऐसा ही है, गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी है, मगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर इन्होंने किराए में भी तक कोई कमी नहीं की। अब मुल्तान का किराया जो पहले था वैसे ही है। DG खां, भावलपुर, इस तरह जितने भी हमारे नज़दीकी इलाके हैं मुजफ्फरगढ़ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में कोटदू, अलीपुर, शाहजमाल, जतोई, जितने भी इलाके हैं ट्रांसपोर्टरों ने अभी तक इनका किराया कम नहीं किया। मुसाफिरों का कहना था कि सैकड़ों की तादाद में शहरी मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हैं। सेक्रेटरी DRTA ने जो किराया नामा बस अड्डों पर आवेजा किया है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसके पाकिस्तान में जो है वो ट्रैफिक पुलिस होगी या इंतजामिया होगी, वो तकरीबन रेट कम कराने में फेल हो चुकी है। तो मेरा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जब आप मसनूआत तेल की कीमतें कम करते हैं तो फिर किराए और दीगर चीज़ों पर भी कमी का जो है ना उस पर इंतजाम किया जाए, इंतजामिया जो है फौरी तौर पर एक्शन ले। शहरियों का मजीद कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी ना करना जिला इंतजामिया को खुला चैलेंज है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ है कि बढ़ती हुई महंगाई से आम तबके की तरह वो भी परेशान है। मुसाफिरों से मुनासिब किराया ही वसूल किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्क में बढ़ती महंगाई से आवाम की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी बड़ी कमी आई है। गाड़ियों की फरोख्त में कमी से महकमा एक्साइज रेवेन्यू के असूल में मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत गाड़ियों की फरोख्त में 10,000 से ज्यादा की कमी हुई। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 54,099 गाड़ियां फरोख्त हुई। जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 85,776 गाड़ियां फरोख्त हुई थी। जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 14,299 जीपें फरोख्त हुई, जबकि जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 25,122 जीपें फरोख्त हुई थी। अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत गाड़ियों की फरोख्त में 10,000 से ज्यादा की कमी वाक़या हुई, जबकि मोटरसाइकिलों की फरोख्त में 91,000 से ज्यादा की कमी वाक़या हुई। गाड़ियों की फरोख्त में कमी से महकमा एक्साइज को रेवेन्यू के उसूल में मुश्किलात का सामना है। मुल्तान शहर में चक्की आटे की कीमत में बड़ी कमी। चक्की आटा 150 से कम होकर 100 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदार और खरीदार भी किसान के हक में बोलने लगे। कहते हैं आटे में रिलीफ तो मिला, मगर हमारा किसान नुकसान में है। मुल्तान शहर में चक्की वाले आटे की कीमत में बड़ी कमी आ गई। गंदम की कीमत कम होने पर आटा 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि जब गंदम 5100 रुपए फी मन थी तब आटा 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुआ। अब हमने किसान से गंदम 3400 रुपए मन खरीदी है तो आटा 100 रुपए फी किलो कर दिया है। गंदम फिलहाल इतनी सेल नहीं हो रही,
3000 रुपये 2800 रुपये उसको गंदम बड़ी मुश्किल से फ़रोख्त करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में 3400, 3500, 3300 रुपये गंदम उनको मिल रही है इंसानों को। खैर कोई खुश भी है और कोई नाखुश भी है इस चीज़ से। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमत में तो रिलीफ मिल गया, मगर काश्तकार को फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू करे। हमारा किसान हमारा पेट पालता है, उसको मुनासिब उजरत दी जाए। 3600 रुपये मन खर्चा आया है किसान का और 3200 3000 रुपये मन बिक रही है, तो इस वक्त किसान जो है ना वो नुकसान में जा रहा है। इस वजह से जो है ना अगर कोई पॉलिसी होती, ये चीज़ें पहले सस्ती हो जाती। ये इकदाम अच्छा है, आवाम को रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन आवाम के साथ साथ जो किसान है, जो इस गंदम को बोता है, जिसने इसका मुनाफा कमाना होता है, अपने बच्चों का रोजी रोटी करनी होती है ना, उसको नुकसान पहुंचा है। शहरियों का मजीद कहना था कि आटे की कीमत में कमी खुश आइंद है, मगर किसान की फसल को भी मुनासिब कीमत पर खरीद कर उसे नुकसान से बचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत गंदम के काश्तकारों को कर्ज देगी। गंदम की कीमत में नुकसान उठाने वाले 5 लाख किसानों को 75 अरब का कर्ज दिया जाएगा। फी एकड़ पर किसान को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को दिए जाने वाला कर्ज सूद फ्री होगा। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ किसान कार्ड से ये कर्ज किसानों को देगी। पंजाब हुकूमत ने किसानों को कर्ज देने के प्लान की असूली मंजूरी दे दी। कर्ज 12 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को दिया जाएगा। कर्ज में रबी और खरीफ की फसलों की काश्त के लिए कर्ज भी शामिल होगा। किसान हुकूमत के ऑनलाइन पोर्टल के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस किसान रुल गए। मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद भी गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी। मुल्तान में किसान सड़क किनारे अपनी गंदम 3,900 की बजाय 3,000 रुपए फी मन फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, जनूबी पंजाब के किसानों के साथ जुल्म। हुकूमत की मुकर्रर करदा तारीख गुजरने के बाद भी गंदम के सरकारी खरीदारी शुरू न हो सके। गंदम काश्त करने वाले किसान ताजिर बनकर अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं। किसान सड़क किनारे मुकर्रर करदा कीमत 3900 रुपए की बजाय 3000 से 3400 रुपए फी मन तक गंदम फरोख्त कर रहे हैं। रुले नहीं पे, सड़कों ते आ गए, सड़कों ते वेचन पै गए गंदम। हुकूमत घेन गिंदी अगा कहीं बे मुल्क नूं दे रही तो चलो साड़ी जना सारे वास्ते सस्ता काम होवेंदा। असा बहुत परेशान है। असा इत्थे आके विच ने असा कस्टमर नु आदे 3400 आदे तो वाती ओ आदे सही कोई ना सानू 3200 नाल मिलदी है, 3100 नाल पिछे जट कोल मिलदी पई है, ते वात असा इत्थे क्या कर सकते हैं। गंदम के काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने गंदम काश्त करने वाले किसानों के साथ धोखा किया है। अपना नुकसान करके मजबूरन गंदम बेच रहे हैं। यानी गवर्नमेंट भी ना ले और हम आवाम को भी ना बेच सकें। कोई हमारा खुदारा हमारे हाल पर रहम करती गवर्नमेंट और हमारे से कोई थोड़ी सी भी खरीदारी शुरू कर देती तो जो है ना एक रेट में मुस्तहकम हो जाता और आवाम भी एक जगह पे टिक जाती और ये हम किसान इस मरतबा जो है ना मरते ना पिसते ना और परेशानी हमारी जो है ना कम हो जाती। किसानों ने मुतालबा किया है कि पंजाब हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करे और किसानों को रिलीफ दे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान।